سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے یہ پوری ورلڈ میں، لیکن اس کی آیت کو پڑھتے ہیں تو نہ سمجھ کے ہوئے، عربک میں پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ تو اپنی جو مدر لینگویج ہے اس میں ہوگا نا، تو ہم اسے نہیں سمجھ کے پڑھتے، اس لیے ہم مومن ہے یا کوئی اور ہے تو ہم کو تو آیت میں دیکھنا ہوگا، کتاب کی آیت میں دیکھنا ہوگا ہم مومن ہے یا نہیں ہے۔ رب کے پاس سے تمہارے پاس جو نازل ہوئی ہے، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس جو نازل ہوئی ہے، تم لوگ اس کو فالو کر کے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کے آئین کو فالو کر کے چلو۔ پھر کیا کہہ رہے، اس کو چھوڑ کے جو نازل ہوئی ہے تمہارے لیے، اس کو چھوڑ کے دوسرا اولیاء رفیع ان کو فالو مت کرو، اور تم لوگ ہیں انسانوں بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو یا مانتے ہو اپنی زندگی میں۔ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس جو نازل ہوئی ہے، وہ نازل تو اللہ نے اللہ کے رسول کے پاس یہی کیا تھا، ہم لوگوں نے دوسرا بنا دیا، اور دوسرا نہیں بہت سارا بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ 7، سورہ اعراف، 1 نمبر آیت سے پڑھائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، 2 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہاری پاس کتاب نازل کیا ہے، تمہاری پاس کتاب نازل کیا ہے، تمہاری من اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے چھوٹا ہونا نہیں چاہیے، اور جو مومن ہے ان لوگوں کے لیے اس کتاب میں نصیحت ہے۔ تو جو لکھا ہوا ہے میں پہلے وہی پڑھا، اور باتوں کی گہرائی میں دیکھنا ہوگا ہم لوگوں کو، ہر بات کی ایک گہرائی ہوتی ہے، تو اس کی گہرائی میں ہم جھانک کے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں ہم کو اس آیت میں۔ تو دوسری آیت میں کہہ رہا ہے، اعراف کا دوسری آیت، تمہاری پاس میں نے یہ کتاب نازل کیا ہے، یہ تم میں نہیں، یہ اللہ کا رسول سے کہہ رہا ہے اللہ، جو میں تمہارے پاس اس لکھی ہوئی کتاب کو نازل کیا۔ باتوں کی گہرائی یہی ہے، پھر سے دیکھیے یہاں پوری بات ہوگی، ہے رسول میں نے یہ لکھی ہوئی کتاب تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کتاب کا مطلب، الکتاب کا مطلب ہم 3 شبد لیں گے اس کے اندر۔ پہلی تو یہ اللہ کی ہے، یہ جو کتاب میں پڑھائی کر رہا ہوں یہ اللہ کی ہے، اور دوسری بات یہ کتاب ہے، بک ہے، اور تیسری بات یہ لکھی ہوئی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور میں کون سی کتاب سے پڑھائی کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب سے۔ تو میں جس کتاب سے پڑھائی کر رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، الکتاب کہتے ہیں عربک میں۔ باتوں کو گہرائی میں دیکھنا ہوگا، ہر بات کی گہرائی میں، ہر چیز کا جو مول میٹیریلز ہوتا ہے اس کا گہرائی میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی چیز ہے، ہر چیز کا گہرائی میں اصلی بات ہوتا ہے۔ تو الکتاب کا مطلب ہم لوگ یہی سمجھیں گے، جو وہ اللہ کی ہے پہلی بات، دوسری بات ہو وہ بک ہے، وہ کتاب ہے، اور تیسری بات ہو کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی بھی لائبریری میں جائیے پوچھئے، وہ کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز دیں گے، تو وہاں پر آپ کو بولنا ہوگا کون سی سبجیکٹ چاہیے آپ کو، ہسٹری چاہیے، وگیان چاہیے، جو بھی ہے وہی بولنا ہوگا، تو وہ دیں گے۔ اللہ کی کتاب بولو گے تو اللہ کی کتاب ہی دیں گے، تو کتاب کا مطلب یہی ہے۔ تو دوسری بات یہاں ہے، جو ہے رسول میں نے یہ جو کتاب میں پڑھائی کر رہا ہوں، یہ لکھی ہوئی کتاب میں اللہ تمہاری پاس بھیجا ہے، اور تمہاری من اس کتاب کے لے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا نصیحت کرنے کے لیے چھوٹا ہونا نہیں چاہیے، چھوٹا ہونا نہیں چاہیے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے۔ باتوں کو گہرائی میں دیکھو، پھر اس کے بعد کہہ رہے نصیحت کرنے کے لیے، اور جو مومن ہے، جو اس کتاب کو یقین کرتے ہیں دل سے، اور اس کتاب کو لے کے چلتے ہیں اپنی زندگی میں، تو
मोमिन के लिए इस किताब में नसीहत है, यानी हिदायत है, मोमिनों के लिए, दूसरा कोई नहीं है। किताब की लास्ट लाइन को, आयत की लास्ट लाइन को देखो, आराफ सूरा 2 नंबर आयत, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है मोमिनों के लिए इस किताब में नसीहत यानी हिदायत है। हिदायत क्या है अभी नहीं बताया, अल्लाह ने दूसरी आयत में बताएगा। तो जो मोमिन होगा, जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, उन लोगों के लिए इस किताब में नसीहत है। तो हम लोग देखते हैं ये किताब तो वर्ल्ड की करोड़ों लोग इसे पढ़ाई करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब है ये पूरी वर्ल्ड में। लेकिन इसकी आयत को पढ़ते हैं तो ना समझ के हुए, अरबिक में पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, और इसके अंदर जो छुपी हुई बात है वो तो अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें होगा ना, तो हम उसे नहीं समझ के पढ़ते। इसलिए हम मोमिन है या कोई और है तो हमको तो आयत में देखना होगा, किताब की आयत में देखना होगा हम मोमिन है या नहीं है। तो हम जब आयत को चेक कर रहे हैं, हम मोमिन है कि या हमें समझ में आ रहा है या हम मोमिन है या काफिर है। तो जो लोग मोमिन होगा उन लोगों के लिए ही इस किताब में नसीहत है। बस तीसरी आयत में कह रहा है, सारे इंसानों को कह रहे हैं, तुम्हारे रब के पास से तुम्हारे पास जो नाजिल हुई है, तुम्हारे रब के पास से तुम्हारे पास जो नाजिल हुई है, तुम लोग उसको फॉलो करके चलो, उसके पीछे चलो, उसको उसके आइन को फॉलो करके चलो। फिर क्या कह रहे हैं, उसको छोड़ के जो नाजिल हुई है तुम्हारे लिए, उसको छोड़ के दूसरा औलिया रफी उनको फॉलो मत करो, और तुम लोग है इंसानों बहुत ही कम नसीहत लेते हो या मानते हो अपनी जिंदगी में। समझ में आ रहा है? फिर देखो आयत में क्या कह रहे हैं अल्लाह। पहले तो बताया ही है जो मोमिन है वही इस किताब के मोमिन, दूसरे किताब के नहीं। मोमिन एक लफ्ज है, एक शब्द है, तो जो जिस पे यकीन करते हैं उसे उसकी मोमिन कहते हैं। उस बारे में किसी और दिन बताऊंगा। तो ये बात यहाँ से कंप्लीट करता हूँ, जो इस किताब के मोमिन है, तो इस किताब को दिल से मानते हैं, इसको लेके चलते हैं अपनी जिंदगी में, इसमें जो आइन है उसे मानते हैं, वो मोमिन है। तो उन लोगों के लिए क्या नसीहत है यहाँ पर? उन लोगों को अल्लाह कह रहे तुम्हारे रब के पास से तुम्हारे पास जो नाजिल हुई है, वो नाजिल तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के पास यही किया था, हम लोगों ने दूसरा बना दिया, और दूसरा नहीं बहुत सारा बना दिया। और कौन बनाया ये यहाँ पर देखो आयत में, तीसरी आयत में, आरफ के तीसरी आयत में कह रहे जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुई है, यानी मैं अल्लाह भेजा हूं तुम्हारे पास, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यही भेजा है। तो तुम्हारे पास जो भेजा है तुम उसे छोड़ के दूसरा औलिया, ये बहुत सारा रफीक है, इसे मत फॉलो करो। ये औलिया कौन है? नहीं, ये औलिया है जितने भी धर्म के गुरु है वही है। ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह की किताब को साइड कर देते हैं, साइड करके अपना बात चला के अल्लाह को किताब को दबा देता है, और उसको जो सोच है वही इंसान के सामने प्रेजेंट करता है, जाहिर करता है उसे, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। ये कौन कहता है? हाँ, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कौन कहता है? यही है अवलिया, इंसानों का अवलिया, ये इंसानों ने खुद बनाया। अल्लाह तो कह रहा है रसूल से, जे तुम इंसानों से कह दो मैं तुम्हारे ऊपर जो नाजिल किया, मैं तुम्हारे ऊपर जो लिखी हुई किताब भेजा है, उन किताब उनको फॉलो करके लोगों को चलने को बोलो। और इस किताब को छोड़ के हम लोग क्या करें, दूसरे अवलिया को ढूंढ लिया मैंने, वह हम लोगों ने उसके पीछे चल रहे। तो अल्लाह की आयत यहाँ रिजेक्ट नहीं कर रहे हम लोग, इनकार नहीं कर रहे। तो कौन सी चीज है अल्लाह की आयत रिजेक्ट होती है, इनकार होती है? कौन सी चीज है? तीसरी आयत में तो पूरा क्लीन हो जाएगा। देखो जो लोग ने अल्लाह की आयत मान के नहीं चला, उन लोगों का जो क्या कहे इस बारे में, उन लोगों का दुनिया में जो हश्र हुआ वह यहाँ पर है। तो हम लोगों के साथ यही हश्र नहीं होगा?
हम नहीं मान के चलेंगे तो यहाँ देखो आयत 4 सूरह अरब की, कितनी ही बस्तियां थी, मैं अल्लाह उसे तबाह किया, मेरा अजाब, मेरा अजाब उन लोगों के ऊपर आता था रात को या दिन को जब वो लोग सोते थे। 5 में कहता है जब मेरा अजाब उन लोगों के ऊपर आता था तब उनकी बात सिर्फ यही होती थी, हाय हम लोग तो जालिम थे। ये जालिम कहाँ आ गया, अरे अजाब किस लिए आ रहा है, यही बात समझाना है, यही बात हमको इस आयत के जरिए समझना है। तो पहले मैं कौन हूं, इसका मैं कैसे बयां कर रहा हूं, मेरा हिस्ट्री क्या है, मैं आयत से ही देखूंगा मैं कौन हूं। मैं कोई नहीं, मैं एक इंसान हूं, मैं अल्लाह की किताब पढ़ाई करता हूं और यहां से जो मैं पढ़ रहा हूं इससे मुझे जो हासिल हो रहा है वो हुक्मा कहते हैं अरबिक में, और मैं जाहिर जो कर रहा हूं आयत की उसे हिकमत कहते हैं, इंग्लिश में उसे साइंस कहती है। ये अल्लाह की साइंस है, हम लोगों की नहीं, ठीक है। तो 4 या 5 ये दो आयत में इस बारे में कुछ बयां कर दूं आप लोगों के लिए। कितनी ही बस्तियां थी, कितने ही गांव या शहर थी, मैं अल्लाह उसे तबाह कर दिया। क्यों? यहाँ कह रहे उनके ऊपर जब मेरा अजाब आता था उन लोगों की सिर्फ बात यही होती थी कि हम लोग तो जालिम थे। ये जालिम क्यों? ये अल्लाह ने मना किया ना तीसरी आयत में, जो अल्लाह ने नाजिल किया जो किताब, इसे छोड़ के दूसरा कोई औलिया नहीं बनाना। हम लोगों ने दूसरा क्या, बहुत सारा औलिया बना लिया, तो आजाब आया। दुनिया में कहीं आजाब नहीं है, चैन से सोते हैं हम लोग, हाँ क्या सुकून से सोते हैं हम लोग? तो हम लोग जब इस आयत को नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर भी ऐसी आजाब आएगी, और आ चुका है और आएगी भी। 5 में देखो, जब उन लोगों के ऊपर मेरा आजाब आता था सिर्फ उनकी ये बात यही होती थी उसकी जुबान से, उन लोगों की जुबान से, जो हम लोग तो जालिम थे। जालिम यही है जो अल्लाह की आयत छोड़ के दूसरा औलिया बना लिया, दूसरा धर्म गुरु बना लिया। एक कोई एक धर्म नहीं है, दुनिया में जितने भी धर्म बना है ये अल्लाह को किताब को छोड़ के ही बना है। अल्लाह के किताब के साथ दीन बनता है, धर्म नहीं। धर्म का अर्थ अलग होता है, दीन बनता है अल्लाह की किताब से। दीन क्या है? वो लॉ में आता है, जो जिंदगी में चलने की हर चीज का एक तरीका होता है, एक लॉ होता है, आइन होता है। तो हो तो हम आगे जाके बता देंगे। 6 में कह रहा है उसके बाद जिन लोगों के पास मैं रसूल भेजा था उन लोगों को मैं पूछूंगा, जिन लोगों के पास मैंने रसूल भेजा था उन लोगों को मैं अल्लाह पूछूंगा, और रसूलों को भी मैं पूछूंगा, क्या तुम लोग ने मेरी आयत छोड़ के दूसरा कुछ कहा था? रसूल से क्या पूछेगा? रसूल को तो अल्लाह ने किताब दी है, लोगों से बयान करो। रसूल का काम क्या है? रसूल किसे कहते हैं? रसूल का इंग्लिश जो शब्द होता है मैसेंजर होता है, अल्लाह की बात दूसरों के तक जो पहुंचाता है उसे रसूल कहते हैं। समझ में आया? तो रसूल ने खुद की बात कही या अल्लाह की? और अल्लाह की किताब के बाहर अल्लाह की कोई और बात है? कितने आयत है ऐसे, ये कंप्लीट है। जमीन आसमान में जो बात है इसमें पूरी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें लिखा नहीं गया। तो उस चीज के बारे में हमें समझ होगी तब हम समझ